adolescents who are navigating one of the most important and also I think one of the most overwhelming phases of their life. Because your life is your choice. And when you're equipped with the right tools, the right mindset, and the right support, making powerful and confident choices become your strength and not your struggle. And to lead us through this journey, we are blessed to have a phenomenal expert with us today who has been a source of deep inspiration and transformation for many people, including myself. Dr. Sween Seni. She's a distinguished clinical psychologist, parenting coach, life skills trainer, career strategist, author, and the founder of the Mind Mentors. Based in Hoshiarpur, Punjab, and serving the community since 1991, she has dedicated her life in empowering teens, young adults, and parents through mental wellness and emotional intelligence. Her work has been recognized on global platforms. She has been honored with many prestigious awards. To name a few, Educational Excellence Award for 3 years in a row by none other than Dr. Kiran Bedi, Chetan Bhagat, and Shashi Tharoor. Also, this Real Superwoman Award, Inspirational Social Icon Award, and many more. She is the author of two deeply appreciated books, and her third book on mental health is already in the works. For me personally, she's my guide, my therapist, my mentor, and I had the honor of learning under her through CBT training course, and I continue to grow each day through my internship with her. Her presence is powerful, her vibe is uplifting, and her aura is unforgettable. She is and always will be my super guru. Before she begins with the session, I would like to inform you all that ma'am will be sharing some amazing bonus resources with you all at the end. So don't miss on those. And now, with immense gratitude and respect, I invite Dr. Sween Sani ma'am to take over and begin today's transformative session, My Life, My Choices. Over to you, ma'am. Hello, everyone. Thank you so much. Thank you, Swati, for this great introduction. So just give me a second, please. I have to share my screen again. Just give me a minute. Let it slow, let it dream, and taste the sky, taste the sky, taste the sky. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां.
A very warm welcome and heartfelt good evening, everyone. And thank you so much, Swati, for your kind words, for your fab introduction, and all the love and gratitude. Thank you so much. So, as Swati told you, this program has been specially designed and organized for Youngistan, all the bright, beautiful, vibrant souls who are looking forward to us for guidance, for facilitation to navigate today's challenging times. So, welcome, parents, welcome, caregivers, welcome, coaches, welcome, mentors, and welcome, my young, vibrant juniors around the globe. Thank you so much for accepting this invitation and coming to this platform. I promise you, you are not going to regret the moments spent today here with us on the Mind Mentors, where we coach your soul. So, whenever I talk to youngsters, and definitely I will use mixed language, English and Hindi. Hope it is okay. So, जब जब मेरी यंग बच्चों से बात होती है, मुझे उनकी ये वाली स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है, माई लाइफ माई चॉइसेस. ट्रस्ट मी, जब हम आप यंग थे तो हम में इतना हौसला, इतना करेज नहीं था टू मेक दिस स्टेटमेंट सो लाउड कि ये मेरी जिंदगी है और मेरे ही फैसले होंगे. आज अगर मैं देख रही हूँ तो 8 to 14 years की एज में बच्चे ये वाला अनाउंसमेंट बड़ा बोल्डली और ब्लंटली करते हैं, एंड आई रियली लव इट. Now I am going to ask you one question from everyone, especially my young force. Keep writing in chat about your answers. Okay? So what is life? आपकी जितनी भी एज होगी अभी तक, यहाँ पूरे ग्लोब से कहीं से भी आप जुड़े हैं हमारे साथ, जितनी भी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस आपके हैं, उसके हिसाब से मुझे बताइए, क्या होती है लाइफ? व्हाट इज लाइफ? यस प्लीज, कम ऑन. I'm waiting for your answers in chat. A few people may answer this is challenge. A few people may say it is happiness. Few people may say it is success. And few, even they may say, wow. So Megha is saying roller coaster. A few people can feel life is a hell. It is very difficult to understand how different people can have different experiences about one term, which is life. Okay. So when this life starts, yes please, ये जिंदगी कब शुरू होती है? कुछ लोग कहेंगे जब हमारा बर्थ होता है, कुछ लोग कहेंगे जब मेरा ये सपना पूरा हुआ, कुछ लोग कहेंगे जब पहली बार मुझे ये चीज अचीव हुई. सो लाइफ इज एक्चुअली ए जर्नी फ्रॉम बी टू डी, बर्थ टू डेथ. ये लाइफ का फिनोमिना शुरू होता है जिस दिन हम अपनी मदर के वोम में कंसीव होते हैं. एक्चुअली इट्स नॉट व्हेन वी कम आउट ऑफ दैट वोम, बट लेट्स सी कि हम इसे बर्थ से ही कनेक्ट करते हैं, बिकॉज वी स्टार्ट experiencing the world when we actually take birth after 9 months. So life is a journey from B to D. अब मैं ये बोलती हूँ कि ये जर्नी मेरे लिए अलग है, ये जर्नी सानवी के लिए अलग है, ये जर्नी एथन के लिए अलग है, एरिका के लिए अलग हो सकती है, और ये जर्नी स्वाति के लिए अलग हो सकती है. तरुण के लिए ये जर्नी बिल्कुल अलग है, डिपेंडिंग अपॉन एज, स्पेस, टाइम एंड एनवायरमेंट एंड देयर एक्सपीरियंसेस. इफ आई से लाइफ की ये जर्नी उतार चढ़ाव के साथ, अप्स एंड डाउन्स के साथ, सबकी अलग अलग होती है, एंड ये कैसी होगी ये जर्नी? इट डिपेंड्स अपॉन one letter which is missing in 3 letters. So which is the letter missing in 3 highlighted letters? Can anybody tell? E. Yes, Alia, thank you so much. Life is a journey full of surprises. You never know what is next. Life is fulfilling one's purpose without hurting. Yes, Megha, thank you so much for responding so quickly.
And Gurjeet, they have mentioned there is a missing letter C. Thank you, Manali. Thank you, Dhanshri. So when I say that this life journey will depend upon C, so what you would like to put in that C according to your own experience, not according to the topic, not according to anyone else point of view, according to your own point of view, your own experience, exposure to life, what would you like to keep in C? Some people may say circumstances, some may say challenges, and etc., etc., etc. Yes, Gurjeet has written challenges. So, whatever you may write or think of, any letter, any word, any meaning to see, basically, when we all over check, this is all about choices. हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी ये हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है. चॉइसेस क्या होती हैं? चॉइसेस ऑफ फ्रेंड, चॉइसेस ऑफ क्लोथ्स, चॉइसेस ऑफ फूड, चॉइसेस ऑफ अट्रैक्शंस, चॉइसेस ऑफ टास्क, चॉइसेस ऑफ हैबिट्स, चॉइसेस ऑफ हॉबीज, चॉइसेस ऑफ सिटीज, चॉइसेस ऑफ एनवायरमेंट. Definitely, whenever we are born, we can't choose our parents. We can't choose which family is going to bring us into this world. And when we are very young, like a toddler or infant period, or then early childhood, middle childhood, late childhood, till then, we have not any control or any grip over our choices. बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी चॉइसेस हमारे ही हाथ में होती रहती हैं एंड देन वी स्टार्ट ऑल्टरिंग आवर चॉइस. और जब आप बच्चे मिडिल चाइल्डहुड से लेट चाइल्डहुड में एंटर करते हैं और फिर ट्वीन की तरफ स्लाइड करना शुरू करते हैं, अर्ली टीन, तब आपका कोग्निटिव ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है. कॉग्निटिव ब्रेन इज इंटेलिजेंट और थिंकिंग ब्रेन, जिसमें रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, चॉइस मेकिंग, और फिर जो फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ता है. तब आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं और आप मम्मा की गोदी, पापा की गोदी से निकल के, अपने केयर गिवर की गोदी से निकल के, स्कूल टीचर्स के माहौल से निकल के एक सोशल एनवायरनमेंट में आते हैं. एक बड़ा संसार, एक बड़ी दुनिया, एक ह्यूज वर्ल्ड आपका वेट कर रहा होता है जिसे आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको उसका एक्सपोजर लेना है. और फिर वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस कैसा होगा? इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ एट द एंड. ड्यूरिंग योर दिस जर्नी, वट एवर चॉइसेस यू आर गोइंग टू टेक, दे मैटर ए लॉट. कैसे आप अपना हर दिन का हर मोमेंट स्पेंड करते हैं, किसके साथ करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या करके करते हैं, दैट मेक्स ए ह्यूज ह्यूज डिफरेंस हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू nurtured, how your life is going to grow. Because choices leads to decisions, decisions lead to action, and actions lead to results. So many of times during our daily life experiences, we feel so bad about results. We feel so bad about consequences. And we start blaming this. And then we feel anxious, we can feel low, we can feel sad, we can feel bad. Even if we don't look at the actions taken by us, we don't evaluate our decisions, and we don't figure out our choices, then we can lead to the mental health issues. So everybody, whosoever at present is not happy with the consequences of their life, please write down your actions taken in past, write down your decisions which led to this result, and then try to list out the choices you opted before reaching to these results. You will definitely find out kahan pe locha hua, where the error occurred. And then this exercise will give you a better evaluation,
a better conclusion where we need to figure out, where we need to fix. It's not about results, it's all about choices. Very simple example for my little bundles of joy sitting here, peeping through the screen. ये आंटी क्या बोल रही है? अब आंटी ने अच्छी चीज दिखाई, एप्पल। ओ माय गॉड, जो मम्मी हर रोज बोलती है, ब्ला 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 ब्ला। मुझे नहीं पता एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, क्योंकि मेरी तो दादी को अभी भी डॉक्टर देखने आते हैं, और दादी ने तो कभी जंक फूड नहीं खाया। सो यंग ब्रेन, they have their own logics, they have their own attractions, impulses. So अगर एक बच्चे को एप्पल और डोनट ये ऑफर किया जाए, और उस बच्चे को उसकी मम्मा ने, उसकी टीचर ने, पापा ने, ग्रैंड मदर ने बहुत बार बताया कि डोनट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इट इज स्वीट, ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इसमें कुछ ऐसे अनहेल्दी कंटेंट हो सकते हैं जो आपकी बहुत ही जो फ्रेजाइल बॉडी है, अभी ग्रोइंग बॉडी है, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एप्पल इज ए गुड चॉइस, बट हमें ये पता भी होता है हमारी बॉडी, माइंड और मूड के लिए क्या अच्छा है। स्टिल सो मेनी टाइम्स वी जस्ट फील so much tempted to pick donut. Am I right? Yes, please. Good. So, when we are young, when we are born, our subconscious was born fearless, confident, complete, enough. We have nothing to do with life choices or results or consequences. बच्चे को सिर्फ चाहिए होता है दूधू, मम्मा, रोना धोना सोना और पॉटी करना, सुसु पॉटी करना। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ की प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज और चॉइसेस अपग्रेड होती रहती हैं। फिर हम फीडर से फूड आइटम्स पे जाते हैं, फिर हम टॉयज हमारे फेवरेट हो जाते हैं, फिर टॉय से हमारी बुक्स, हमारी स्टेशनरी आइटम्स, हमारी कलर जो पेपर्स होते हैं वो फेवरेट हो जाते हैं। देन थोड़े से बड़े होते हैं तो कुछ फ्रेंड्स हमारी प्रायोरिटी और प्रेफरेंसेस बन जाती हैं। देन जब थोड़ा सा और बड़े होते हैं, 10th तक आते आते, फिर तो इतना बर्डन आ जाता है कि सब्जेक्ट की जो प्रेफरेंसेस हैं, सब्जेक्ट चॉइसेस हैं, वही जिंदगी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लगने लगते हैं। और फिर थोड़ा सा और बड़े होने के बाद वी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बॉयज और गर्ल्स, फिर हमारी और फ्रेंडशिप ग्रो होती है, देन वी कम इनटू रिलेशनशिप, वी सेटल इन करियर्स एंड देन वी मेक फैमिलीज। सो लाइकवाइज सिटी, स्टेट, कंट्रीज भी चेंज होती हैं, प्रोफेशन और प्रोफाइल्स चेंज होते हैं, घर चेंज होते हैं, फर्नीचर चेंज होते हैं, है ना, कपड़े चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट चॉइसेस का, प्रेफरेंसेस का जो पड़ता है वो इस एज ग्रुप में पड़ता है, 7 to 14 years. And as Swati rightly said, this program has been efficiently designed and drafted for that age group, जिन्हें हम ट्विनी ट्विनी ट्वींस बोलते हैं। आज ये बच्चे जो इस एज कैटेगरी में हैं, दे आर मच मच स्मार्टर देन 30-40 years age people. I completely agree and I accept it. These beautiful, intelligent, vibrant and efficient minds, they are full of energy, they are full of curiosity, they want to explore everything, and luckily, fortunately, they are in that era जहां पेरेंट्स ने उनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी प्लेटर में रख के प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसीलिए चॉइसेस भी बहुत ज्यादा हो गई हैं और उनसे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। सो बिफोर टेकिंग एनी चॉइस ऑफ योर लाइफ, माय डियर यंग पीपल, यू हैव टू थिंक ऑफ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। 7, 8, 10 years तक मम्मी पापा ने आपको जो जो कह के बड़ा किया, जो सिखाया, जो समझाया, आपने स्कूल में पढ़ा, अंकल आंट से सीखा, अपने टीचर्स और मेंटोर से सीखा, उन वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम पे आपका थिंकिंग स्टाइल डिपेंड करता है। आप वही फील करते हो जैसा आपको दिखाया और समझाया जाता है।
फला अंकल गंदे हैं, उनके साथ बात नहीं करनी, ये आंटी बहुत प्यार करती हैं, इनके घर जा सकते हो, इनके हाथ से खाना खा सकते हो, है ना, दादी आपको प्यार करती हैं, वो नहीं करते हैं, और फला फला बच्चे ने बुली किया। तो जिस तरह से आप आगे आगे एक्सपीरियंस लेते हो, वैसे आपकी फीलिंग्स बनती जाती हैं, उस तरह के डिसीजंस लेने आप स्टार्ट करते हो। लेकिन क्योंकि इस एज और स्टेज में आपके खुद के डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी ग्रो हो रहे हैं, आपका ये इंटेलिजेंट और थिंकिंग ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो बीच बीच में कई बार आप मम्मी पापा की, फैमिली की, बड़े भैया और दीदी की बात सुने बिना कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं। आप अपने लेवल पे कुछ एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं, आप अपने लेवल पे कुछ इंटरैक्शंस, कुछ एक्सपोजर इंजॉय करना चाहते हैं, और इसीलिए आपके डिसीजंस और एक्शंस के बीच में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पास्ट में कैसे थे या फ्यूचर में कैसे होंगे। वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। पास्ट में आप एक गुड बॉय गुड गर्ल हो सकते हो, आप एक बहुत स्टूडियस और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो सकते हो, पर फ्यूचर में भी एक रहोगे। ये डिपेंड करेगा कि आप प्रेजेंट में क्या डिसीजन लेते हो, क्या एक्शन लेते हो। तो फ्यूचर के रिजल्ट्स उसके बेसिस पे आते हैं। और जैसे जैसे आप डिसीजंस लेते हो कि ओके, इस बार मैं क्लास में टॉप करूंगा, या आई एम गोइंग टू रॉक ऑन द स्टेज व्हेन आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिबेट, ओके, सो आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, yes, I am a very good writer, so this year in new school newsletter I am going to submit my article। तो ये सारे आपके डिसीजंस होते हैं, और धीरे धीरे आप उन एक्शंस की तरफ चल रहे होते हो। सडनली ना जाने कहां से एक वायरस आ जाता। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, नई नई चीजों की नॉलेज बन रही है, नई नई चीजों की इंफॉर्मेशन हो रही है, और उस इंफॉर्मेशन एज में एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, आईपैड स्क्रीन, टैबलेट की स्क्रीन, जो हर बच्चे के हाथ में है, क्योंकि कोविड ने उसे हमारी एक नेसेसिटी बना दिया था। आपका क्लास ऑनलाइन था, आप सोशल मीडिया पे आ गए, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, आपने यूट्यूब से होमवर्क किया। धीरे धीरे वो जो एक्सपोजर हुआ, वो इतना एक्साइटिंग एंटरटेनिंग था, आपको इतना उसमें सब कुछ मिलने लगा जो घर में फ्रेंड्स के साथ रियल लाइफ में नहीं मिल रहा था। तो आपका अटेंशन जो था पहले, टॉप करना क्लास में, किसी को स्पोर्ट्स में बीट करना, एक अच्छा ऑरेटर बनना, एक अच्छा राइटर बनना, एक अच्छा पेंटर बनना, या फिर एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना, तो उसमें हमारा जो अटेंशन था वो इधर डाइवर्ट हो गया। सो डिस्ट्रैक्शंस वो हमें कहीं ना कहीं खींच के ले जाती है। अब ये डिस्ट्रैक्शन वर्ड थोड़ा नेगेटिव लगता है, लेकिन सीधे से ही हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, पहले हम कुछ चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आर द अट्रैक्शंस? और यहाँ बैठे हुए बच्चों की लाइफ में इस वक्त क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, मैं जानना चाहूंगी। बच्चे ही नहीं, बड़े भी, मैं चाहूंगी आप सब लिखिए चैट में कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। एक बड़ी गाड़ी हो सकती है, एक प्यारा सा मोबाइल हो सकता है, एक बाइक हो सकती है, एक सुंदर ड्रेस हो सकती है, कुछ भी, जो भी आपको अट्रैक्ट करे। मुझे जो रोज फ्लावर है वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, मुझे सुंदर लोग जो बहुत ही नीटली ड्रेस्ड होते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, मुझे किसी का बात करने का स्टाइल बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। यस, सो प्लीज मेंशन कि आपकी करंट अट्रैक्शंस लाइफ की क्या हैं। वेरी गुड, फिक्शनल बुक्स, ड्रेस, गोल्ड ज्वेलरी, टू बी ऑन सॉक, वाओ, मनी, बीचेस, क्या बात है, बुक्स, फोन, मोबाइल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बुक, गेम एंड साइकिलिंग, क्या बात है, पीपल हु आर हैप्पी, वेरी गुड, मनी, फोन, मूवीज, टू बी ऑन सोशल मीडिया, पैसा मैम पैसा, क्या बात है।
PS5 अरहान, क्या बात है। Yes. So similarly, everybody is attracted towards something, and it is nothing wrong to get attracted, whatever is worth attraction. Now we all have some goals in our life. जैसे मैंने बताया, किसी का गोल एक स्टूडियस बच्चा होना या फर्स्ट आना हो सकता है, किसी का एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होना हो सकता है, किसी का वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमी में चेंज लाना हो सकता है, किसी का एनवायरनमेंट को चेंज करना एक गोल हो सकता है, कोई स्ट्रे एनिमल्स की केयर करना चाहता होगा, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, कोई चाहता है कि वो लोगों को अच्छे से ट्रेन और कोच करे, कोई मैम के दुनिया से बाय बाय करने के बाद माइंड मेंटोर्स की जिम्मेवारी निभाना चाहता होगा। तो सबके लाइफ के गोल्स अलग अलग हैं। अब इन गोल्स में हमें अलग अलग चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं जो हमारा गोल डिफाइन कर रही हैं, बट अब हमने अपनी हैबिट्स और अपनी अट्रैक्शंस को दो कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है। अगर मेरी जो भी अट्रैक्शन है वो मुझे मेरे गोल की तरफ पुश कर रही है, मुझे मोटिवेट कर रही है, मुझे हेल्प कर रही है टुवर्ड्स बीइंग ए सक्सेसफुल एंड गुड पर्सन इन लाइफ, a good achiever in area, whatever area is of my choice, then to this attraction is wonderful. Then we can place that attraction into traction column. Traction is a force, वो एक्शन विच मूव्स अस टुवर्ड्स आवर गोल। जो भी जिंदगी में हम बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, मनी, फेम, नेम, आइडेंटिटी, बिग हाउस, बिग कार, whatever, और एक गुड प्रोफाइल, और हैप्पीनेस, और सक्सेस। So if my actions, they are pushing me towards that goal, then so they are positive, they are good, they are get to go, they are tractions. But if my today's actions, they are pulling me away from my goal, मैं 2 कदम आगे चलूं, वो 4 कदम मुझे पीछे खींच लेते हैं। I want to achieve something, but I am hooked here. That is a negative force which is wasting my time and energy, which is spoiling my precious moments and pulling me away from my goal. And I am just lost in that attraction, which is negative and called as distraction. So distraction is a negative force which is not helping you to achieve lifelong dreams. And traction is a positive force which is pushing you towards your goal. So my dear bacha log, my dear parents, my dear coaches, my dear adults, choose your attractions wisely. So write down in 2 columns and decide yourself कि जिंदगी में आगे जाके क्या चाहिए। अच्छी सेहत चाहिए तो आप उस तरह की चॉइसेस लेंगे, अच्छा करियर चाहिए तो आज आप उस तरह की टास्क करेंगे, अच्छा नाम, अच्छा पहचान, अच्छा पैसा, अच्छा स्टेटस चाहिए तो आप आज ही अपनी टास्क को, एक्टिविटीज को, ईटिंग हैबिट्स को इन 2 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लीजिए। क्योंकि अगर आज ये नहीं किया, प्रेजेंट में अगर अटेंशन पे नहीं की, तो यही पेन आपको फ्यूचर में देगी फियर, एंजाइटी, पैनिक, स्ट्रेस और ना जाने क्या क्या। और जब भी आप वापस पीछे मुड़ के अपनी चॉइसेस की तरफ देखोगे, ऐसे करोगे, रिग्रेट, गिल्ट, शेम, अपने पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और फिर कहेंगे किसी ने तब क्यों नहीं रोका, मुझे तब क्यों नहीं बताया, मैं तो छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा बच्चा था, मुझे क्या पता था। तो आज हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, हम आपको कोई प्रीचिंग, कोई ज्ञान नहीं दे रहे। सो दिस इज कंप्लीटली नाउ योर चॉइस, completely your decision, completely your action, what kind of results you are ready to face in future, and how you will feel when you will look back to your past, when you will grow in some years. So it's completely your choice.
So my dear audience, we are not here to blame you, to complain about your behavior, or to just mention your negative points. We are here to let you be aware. We are here to guide, we are here to facilitate because we care. Okay? So we and your parents, we are so much worried about today's scenarios. आज का जो सिनेरियो है, आज का जो एनवायरनमेंट है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस दे आर टर्निंग इनटू एडिक्शंस. डिस्ट्रैक्शन सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं रही कि थोड़ी देर ध्यान हटा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता है कि जब भी हमारी ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, है ना. जब भी हमारा ख्याल पॉजिटिव से नेगेटिव चीज की तरफ गया तो फिर दे आर turning into little bit of obsessions, and then obsessions lead to addictions. क्या होती है एडिक्शन, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे. कोई भी बिहेवियर जो आपको अच्छा काम करने से रोक रहा है, आप जानते हो कि इस वक्त इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज वेस्टेज ऑफ हेल्थ, इट इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, इट इज वेस्टेज ऑफ आर एफर्ट्स, स्टिल वो बिहेवियर हम बार बार करते हैं. कोई भी नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव चॉइस which is going to harm me, my family, my relationships, my health, my mind, anything. It's not going to produce any better result or consequence, but still I am continuing that. Then I am addicted to that behavior. चाहे वो माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो सारा दिन, एक ऐप से दूसरी ऐप, एक सोशल मीडिया से दूसरा सोशल मीडिया, या फिर वो एक गेम के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होना, हुक्ड होना, ऑब्सेस्ड होना, या फिर किसी भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ, या फिर बार बार एक ओटीटी प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करना जस्ट बिकॉज एक और एपिसोड देख लेते हैं. टाइम तो 11 बज गए हैं, कोई बात नहीं, अभी तो 11 ही बजे हैं, स्कूल जाना है सुबह, पर कोई बात नहीं, एक और गेम खेल लेते हैं, एक और लेवल, एक और एपिसोड. जब ये वाला कंट्रोल नहीं रहता, और हम 9 बजे मम्मा को कह के सोए, बोले थे कि 1 घंटे के लिए फोन दे दो, पर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, हमने उसे नहीं छोड़ा. और सुबह उठते वक्त हम लोगों का सर दुख रहा है, बॉडी दुख रहा है, नींद पूरी नहीं हुई, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं. But still, we are not learning or taking lesson from that, continuing that, even it is eating any unhealthy food. I like sweets, I like biscuits, I like chips, I like momos. मुझे वही खाना है, मुझे और कुछ नहीं खाना है. I am in 8th class, I may be in 10th class, and I know very well because आज के बच्चे अवेयर हैं, आज के बच्चों को सब पता है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स क्या होते हैं, स्पॉयलर्स क्या होते हैं, सब उनको पता है. हमें तो पता ही नहीं था जब हम छोटे थे. स्टिल वी आर इग्नोरिंग दोज फैक्ट्स एंड वी आर getting impulsed or getting tempted towards unhealthy food, unhealthy choices. So addiction, my dear friends, it is a harmful compulsive action. चाहे वो लगातार फोन यूज करना, लगातार सोशल मीडिया पे रहना, या फिर अनहेल्दी अननोन पीपल के साथ इंस्टा फ्रेंडशिप्स कंटिन्यू करना, अपनी स्नैपचैट पे अपनी पिक्चर्स, अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल डिटेल किसी स्ट्रेंजर को शेयर करना, ये सारे हार्मफुल लेकिन कंपल्सिव एक्शन हैं अगर ये हमारी एडिक्शन बन गई. यहां पर बैठे हम सबको पता है, मुझे भी पता है कि 20 मिनट्स मैंने स्पेंड किए एक्सरसाइज में या स्पेंड किए स्क्रीन देखने में, दोनों का अलग अलग रिजल्ट आएगा. वी ऑल नो कि 20 मिनट्स स्पेंड किए हुए दो अलग अलग एक्टिविटीज पे उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. So some people may choose exercise. Most of us choose screen. Why?
why we keep on preferring these negative or unhealthy habits over routine task, work, or responsibilities. Or I will say, why we prefer to choose unhealthy choices over healthy choices. Because this is a human psychological fact, pain versus pleasure. इसमें आपकी गलती नहीं है. आज आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो ब्रेन वर्सेस माइंड, ये दोनों का आपस में एक गेम चल रहा है. सो कौन उस गेम में जीतेगा, वैसा ही हम बिहेव करते हैं. ओके. सो ये जो प्लेन और प्लेजर का ट्रैप है, ज्यादा टाइम तक बैठ के पढ़ना किसको अच्छा लगता है? बुक्स आर नॉट एंटरटेनिंग. बुक्स आर नॉट एट ऑल एंटरटेनिंग. बुक्स आर बोरिंग. लेंदी आंसर लिखना, उनको लर्न करना, मैथ्स करना, ओ माय गॉड, हिस्ट्री समझना, और ये लैंग्वेज होती है हिंदी पंजाबी, ओ माय गॉड, दे गिव अस पेन. हमारा ब्रेन थकने लगता है तो माइंड आ जाता है, मंकी माइंड, चल चल गेम खेलें, प्लेजर की तरफ खींचता है हमें. और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस प्लेजर और के ट्रैप में आते हैं. पेनफुल एक्टिविटीज से हम भागने लगते हैं. वो एक्टिविटीज जिसमें हमें डिसिप्लिन शो करना पड़े, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़े, एफर्ट्स लगाने पड़े, हार्डवर्क करना पड़े, और जिसके रिजल्ट इंस्टेंट ना हो, इमीडिएट ना हो, हम वो चीजें नहीं करते. और हम प्लेजर एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं जिसमें लेस एफर्ट्स हैं, कम हार्डवर्क है, इंस्टेंट इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, साथ के साथ खुशी मिल रही है. और ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा प्लेजर हार्मोन डोपामिन. डोपामिन एक गुड या हैप्पी हार्मोन होता है, और ये तब तब रिलीज होता है हमारे ब्रेन में जब हम कोई मन पसंद काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी अपने फेवरेट पर्सन से मिल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, हम अपनी फेवरेट गेम खेल रहे होते हैं, या फिर हम अपना फेवरेट फूड खा रहे होते हैं जिसकी हमें बड़ी टेम्पटेशन होती है. जब मैं चाय पी रही होती हूँ, जब मैं जूम पे सेशन ले रही होती हूँ, है ना. सो जब मैं नया कंटेंट क्रिएट कर रही होती हूँ, नई पीपीटी बना रही होती हूँ, तो मेरे लिए वो टेम्पटेशन है, मेरा डोपामिन लेवल राइज हो जाता है जब मैं अपने पेट्स के साथ खेल रही होती हूँ. सो हमारे ब्रेन में फिर वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं. और फिर जिन चीजों से हमें ऐसे वाला इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, मेरी ये चॉइसेस हैं जो मैंने बताई, ट्रस्ट मी, आपकी कोई और हो सकती हैं. आपकी कोई वीडियो गेम हो सकती है, आपकी कोई नेटफ्लिक्स सीरीज हो सकती है, आपका कोई कोरियन शो हो सकता है, आपका कोई फूड हो सकता है. आप मोमोज या बर्गर में वो ढूंढ रहे होंगे, किसी को अल्कोहल की लत लग गई होगी, कोई और चीजों में जा रहा होगा. जब जब हम अपने इस इंटेलिजेंट और थिंकिंग ब्रेन को प्रोडक्टिव एक्टिविटी से उठा के किसी भी इस तरह के प्लेजरेबल बिहेवियर या सब्सटेंस या फूड में यूज लगा देते हैं, तब हमारा ये ब्रेन वो बाहर वाली डोज पे डिपेंडेंट हो जाता है, और खुद से अंदर से उसके डोपामिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है. ऑटोमेटिकली भी ब्रेन ने हैप्पी हॉर्मोन्स बनाने थे. जैसे मैं अगर नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैं जब अपनी पीपीटी तैयार कर रही हूँ या आपके साथ बात कर रही हूँ, तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली इस एक्टिविटी से हैप्पी हार्मोन बना रहा है. ओके. और ये मेरा एक कंसिस्टेंट काम है, तो इसलिए मुझे इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन इज माई पैशन. और ये हार्ड वर्क, ये सारा दिन लोगों के साथ बात करना, लोगों को हील करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, इट गिव्स मी प्लेजर. सो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली सारा दिन हैप्पी हार्मोन बनाता है. दैट्स व्हाई पीपल आस्क मी कि मैम आप सारा दिन इतना काम करके, इतना बोल के थकते नहीं हो? आपको स्ट्रेस नहीं होता? हाउ यू फील सो पॉजिटिव एंड हैप्पी इवन टिल द लास्ट सेशन लेट इन द इवनिंग 8:30? Because I have trained my brain to be good in its own production. I'm not using anything from outside. कि गेम खेलूंगा तो हैप्पी होऊंगा, बर्गर खाऊंगा तो मैं हैप्पी होऊंगा, या मैं अपनी उस फ्रेंड से लगातार बात चैट करूंगी, स्नैपचैट मुझे मिलेगा, फोन मिलेगा तो मैं हैप्पी होऊंगा. व्हेन वी आर
dependent on outside things to feel that happiness, our brain stops producing happy hormone. Okay? And it's basically trying to create a balance. उसको लगता है कि भैया अगर आप ऑर्डर करके फूड बना रहे हो तो हम किचन में क्यों बनाएं, है ना? अगर आप रोज ऑर्डर करके फूड मंगाओगे तो मम्मा किचन में नहीं बनाएंगी. सिमिलरली ब्रेन कहता है कि ठीक है, आपको अपना कोई काम नहीं करना है. आपको अगर खुशी नहीं मिलती है पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में, साइकिल चलाने में, और रेसिंग करने में, खेलने में, फैमिली से बात करने में, जो आपका रूटीन का हिस्सा है रोज रोज, तो फिर आप उन्हीं चीजों से ही हैप्पी हार्मोन ढूंढो जो आपको बाहर से मिलती है. और इससे बन जाता है डोपामीन एडिक्शन. एडिक्शन टू अनहेल्दी बट इजिली एक्सेसिबल प्लेजर्स. चाहे वो इंस्टाग्राम से आए, सोशल मीडिया से आए, चाहे वो फूड से आए, चाहे वो फ्रेंड से हर वक्त चैट करने से आए. डोपामाइन एडिक्शन तो अच्छी बात है. क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि डोपामाइन इज ए हैप्पी हार्मोन, और अगर इसकी एडिक्शन लग जाए तो बहुत अच्छी बात है. एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए आलिया को अपनी क्लास में टॉप करना है. अब आलिया को क्लास में टॉप करने के लिए फाइनल एग्जाम्स तक डेली थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग 365 days. Only then she will be sitting in final exams and getting that top position. Or if she wants to beat any other girl in the class. So she has to make consistent efforts, painful hard work, daily basis without any pleasureful result, pleasurable activity. तो 365 days तक वेट करके वो डोपामीन वाली फीलिंग आएगी. ठीक है? So many people, they are not so much patient to wait for this. और हमारा जो मंकी माइंड है, डोपामिन एडिक्टेड ब्रेन है, वो दो चॉइसेस की तरफ भागता है. अगर किसी को ये लत लग गई कि नहीं, मुझे तो 365 days पढ़ के ही ड्रॉप बाय ड्रॉप डोपामिन मुझे रोज मिल रहा है. आई फील हैप्पी व्हेन आई स्टडी हार्ड, एज आई टोल्ड यू अबाउट माई सेल्फ. मैं सारा दिन काम करती हूँ, मुझे मजा आता है, मुझे वो बोझ नहीं लगता, मुझे वो डिस्टर्बेंस या डिफिकल्ट नहीं लगता. सो एवरी डे आई एम गेटिंग माई डोपामिन. बट अगर किसी को इंस्टेंट डोपामिन मिल जाए, कि जब आपकी शुरू में थोड़ी सी आदत बनती है सोशल मीडिया पे जाने की, या गेम खेलने की, या माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने की, आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलने लगा. अब वो इंस्टेंट प्लेजर ओवर पावर कर गया, डोमिनेट कर गया हमारे वो ड्रॉप ड्रॉप वाले डोपामिन को. और धीरे, सपोज आलिया इस एक्टिविटी से उस एक्टिविटी पे शिफ्ट होती गई, क्योंकि उसे इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट डोपामिन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन हो गई. एंड चीप, इजिली एक्सेसिबल इंस्टेंट डोपामिन चूज करेंगे हम. कंसिस्टेंट एफर्ट करना, हार्डवर्क करना, पेन लेना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, खुद के ऊपर कंट्रोल करना, वो हम छोड़ देते हैं. पर एंड ऑफ द ईयर पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले हैं? If we are going to replace this everyday little hard work and painful effort with easy and immediate pleasure, so at the end of the year we are going to lose our aim, we are going to lose our position. मैंने अपने आप से जो कमिटमेंट की थी कि मेरे को उस सेकंड लड़की को बीट करना है और क्लास में टॉप करना है, आई वॉन्ट टू विन दिस मैच, दिस टाइम माई टीम विल विन दिस मैच, or this time I will be stage secretary, I will be prefect of my school. Any game, any aim, any goal, it is completely vanished, because I chose short-term pleasure, either eating chocolates, using social media, eating junk food, gaming, porn, or much shopping on internet, over long-term pain. मेरा ये शॉर्ट टर्म प्लेयर जो है, ये लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है. सो दिस इज द राइट टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कितनी सारी बिहेवियरल जो कंपल्शन है और डिस्ट्रैक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू बी एडिक्शंस. चाहे वो इंटरनेट एडिक्शन है,
चाहे वो गेमिंग एडिक्शन है, शॉपिंग है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, चाहे वो वीडियो गेम एडिक्शन है, सोशल मीडिया है, या फिर जिमिंग है. These days, gymming is also getting so much obsessive behavior that has led to addiction. And because of this instant gratification trap. Okay? लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान ना देते हुए शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट, वो क्विक हिट जो है, क्विक जो डोपामिन किक है, उसके लिए हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स में जा रहे हैं. और इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. मेरी फ्रेंड ने बोला स्नैपचैट पे आ जा, बड़ा मजा आता है, हम तो लेट नाइट तक बातें करते हैं. आप बोलते हो नहीं, मेरी तो मम्मा अलाउड नहीं करती, मुझे नहीं अच्छा लगता. तो एक बार तो आ, बस आ जाना, तेरे को बड़ी मजेदार चीज दिखाएंगे. अब एक के बाद फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन उन्होंने पुश किया, और आप उस पीयर प्रेशर में धीरे धीरे आते गए. चाहे वो सोशल मीडिया पे आना, किसी बॉय के साथ या गर्ल के साथ इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप करना, या फिर किसी गेम में लेवल्स का लालच हो जाना. कोई फ्रेंड कहता है अच्छा मैं तो 4th लेवल पे पहुंच गया, तू अभी फर्स्ट पे है, आजा, अगर हिम्मत है तो आज मेरे को बीट करके दिखा, पहुंच के दिखा 4th लेवल पे, कल से एक साथ खेलेंगे. और आप उस रात, पूरी रात बैठते हो 3 लेवल और अचीव करने के लिए. और फिर एक और आपको गोल मिलता है कि उसको अब अगले दिन से दोनों ने 4th लेवल से शुरू करना है, देखते हैं कौन पहले 7th लेवल पे पहुंचता है. तो धीरे धीरे आप रेगुलर यूज में आते हो, और फिर कब आपका मन पढ़ाई से, एक्टिविटी से, गेम से, गोल से हटके इधर एक नई हैबिट पे आ जाता है, और फिर आप उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि रोज रोज आपको मजा आ रहा है, ये मजा आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर खराब कर रहा है, हमें ये नहीं समझ में आता. और इसका असर सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के उस पोर्शन पे होता है जो इंटेलिजेंट थिंकिंग ब्रेन है. रोज रोज यही वाला डोपामिन हिट जो है, वो इसकी खुद की कैपेसिटी को कम कर रहा है, और ये काम जो इसने करने थे आगे बड़े होने तक, अच्छे डिसीजंस लेना, एनालिटिकली सोचना, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट करना किसी सिचुएशन की, आपकी पर्सनालिटी एनहेंसमेंट में इसने रोल प्ले करना था, आपकी इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करनी थी, आपको रिजिलियंट बनाना था, आपका कम्युनिकेशन लेवल ग्रो होना था यहीं से ही, आपने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यहां से बढ़ानी थी. और यही पोर्शन धीरे 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 काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा. सारा दिन हम उस मंकी माइंड को, जो कि अनदर एरिया है जो इस तरह के बिहेवियर्स चाहता है, वो इंस्टेंट प्लेजर में फंस जाता है, वो ग्रो कर रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है. उसको आप इतनी फीड दे रहे हो कि वो बड़ा होता जा रहा है, और वो आपको नचा रहा है, वो एक आपको मंकी की तरह डमरू बजा के नचा रहा है. लेकिन जो इंटेलिजेंट ब्रेन था वो श्रिंक होता जा रहा है. एंड देन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम्स इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से आपको बड़ी जल्दी गुस्सा आने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको काम करने को मन नहीं करता, कहीं जाने को मन नहीं करता, किसी से बात करने को मन नहीं करता, कोई भी स्किल सीखने को मन नहीं करता, क्लासेस अटेंड करने को मन नहीं करता. एंड दिस इज कॉल्ड डोपामिन एडिक्शन. क्योंकि इजी और एफर्टलेस चीजों में आप पड़े, क्विक डोपामिन हिट मिला, और ये वाला जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ये स्टोर कर लेता है इंस्टेंट प्लेजर क्यू, जो माइंड है, दिस इज कॉल्ड मंकी माइंड. इट स्टोर्स द इंस्टेंट प्लेजर क्यू, और बार बार आपको उसके बारे में सिग्नल दे दे के तंग करता है. एंड देन इट बिकम्स हैबिट. अगर आप जल्दी इस लूप को नहीं ब्रेक करते हो, धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है. और आदत मम्मी पापा के कहने पे, किसी बड़े भैया दीदी के कहने पे, स्वीन मैम के कहने पे, अगर आप ये आदत नहीं बदलते हो आज भी, तो ये आपकी कंपल्सिव हैबिट बनेगी, और धीरे धीरे आप बीमार हो जाओगे, बिकॉज यू विल बी एडिक्टेड टू दीज थिंग्स. ओके. और टेक्नोलॉजी की एडिक्शन सिर्फ आंखों पे, ब्रेन पे, स्किन पे, हेल्थ पे बुरा असर नहीं डाल रही, ये आपके रिलेशनशिप पे भी बहुत ज्यादा असर डाल रही है, आपकी इमोशनल ग्रोथ पे, ईक्यू पे भी बहुत असर डाल. सो आईक्यू और ईक्यू दोनों ही डिस्टर्ब हो गए, तो कल को आप अपने फ्यूचर गोल्स,
आगे की जो कॉलेज की पढ़ाई है, आपका करियर, अच्छी जॉब्स के इंटरव्यू, आप कुछ भी क्लियर करने के लिए आपकी पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। ओके, आप ऐसे वाले सिनेरियोज देखते होंगे डेली। घरों में डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो भी हम सब फोन में बिजी हैं। ये मैं सारे पेरेंट्स, एजुकेटर्स, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, जो लोग भी आज बैठे हैं यहाँ, बच्चों के साथ या बच्चों से अलग, मैं सबको बता रही हूँ, ये लाइफस्टाइल हमने दिया है बच्चों को। सो प्लीज, ये लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है हमें, तभी बच्चों की प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज चेंज होंगी। मैंने पीछे स्क्रीन टाइम यूज का एक वेबिनार किया था, उसमें कुछ टिप्स बताई थी कि आप टेक फ्री जोन बनाइए अपने घर में, टेक फ्री टाइम बनाइए, टेक फ्री प्लेसेस बनाइए, टेक टेक फ्री एक्टिविटीज डिवाइस करिए। जब आप लीड लेंगे तो धीरे धीरे बच्चे आपको फॉलो करेंगे, एकदम से उनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। आज हर इंसान फूड की फोटो ले रहा है, एरियाज की फोटो ले रहा है, हम लोग मूवीज बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, लेकिन हम उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। और धीरे धीरे हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं फिजिकल स्पेस में, लेकिन जुड़ते जा रहे हैं ओनली ऑनलाइन स्पेस। जब हमारा फिजिकल स्पेस में कनेक्शन लूज हो रहा है, वहां सिर्फ करेक्शन, लेक्चर, प्रीचिंग, बस ब्ला 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 हो रहा है, तो फिर हम सब लोग अपने अपने तरीके से डिजिटल मीडियम में कनेक्ट होते जा रहे हैं। और उस डिजिटल मीडियम के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही खतरनाक है। वहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कोई चेहरा नहीं है। एक 57 ईयर ओल्ड अंकल अपनी प्रोफाइल पिक पे 17 ईयर ओल्ड बॉय की पिक लगाते हैं और अपना प्रोफाइल भी उस तरह से लिखते हैं, और फिर किसी 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर ओल्ड गर्ल को वो ट्रैप करते हैं थ्रू स्नैपचैट और थ्रू इंस्टा मैसेजेस। और उस बच्ची को नहीं पता कि वो कौन है बिहाइंड द स्क्रीन। सो दे आर चैटिंग 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 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, एंड देन दैट पर्सन lures दिस गर्ल टू मीट इन पर्सनली, कहीं पे भी मिलने के लिए बुलाते हैं। वो स्कूल भी बंक कर सकती है, स्कूल के बाद किसी फ्रेंड्स के साथ जा सकती है, एंड देन पता चलता है कि ही इज नॉट ए यंग बॉय टू बी ए फ्रेंड, ही इज एन अंकल, ही इज ए प्रीडेटर, जो यंग बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट और अब्यूज करने के लिए इस तरह से ट्रैप करते हैं। सो देर आर सो मेनी केसेस अराउंड अस कि इस तरह की फ्रेंडशिप्स जो हैं, इंस्टा फ्रेंडशिप्स हैं, जिनका हमें पता ही नहीं कौन है। इवन अगर आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी इंस्टा चैट्स कर रहे हो या स्नैपचैट पे हो, नेवर नेवर शेयर योर पर्सनल पिक्स, योर वीडियोस और योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, वट एवर इज गोइंग इन टू योर फैमिली। आपका कोई ट्रॉमा है, आपकी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, जब तक आप किसी को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, तब तक आप अपना कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर ना करें। अभी आप वो दुनिया नहीं देख पा रहे हो जो न्यूज में हम देख रहे हैं। सो इसीलिए एडल्ट्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप लगातार वीडियो गेम्स, इंटरनेट एडिक्शन, स्नैपचैट एडिक्शन, ड्रग्स और ओवर एक्सरसाइजिंग और जिम के प्रोटीन्स जो हैं, पैक्ड फूड्स है, पॉर्न है, इस तरह की एक्टिविटी गल्ज रहेंगे, अगर इस तरह की चॉइसेस को आप प्रेफर करेंगे, then definitely your life is going to be a trash. आपको गॉड ने ट्रैश बना के भेजा नहीं है। आपको गॉड ने बहुत अच्छे पेरेंट्स, बहुत अच्छी फैमिलीज, बहुत सारी रिसोर्सेज, बहुत सारी फैसिलिटीज दी थी ताकि आप और भी आगे ग्रो कर सको। लेकिन आपकी चॉइसेस आपका फ्यूचर ट्रैश में डाल सकती है। ओके, बिकॉज चॉइसेस लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस। नेगेटिव चॉइसेस आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकती हैं, आपकी हेल्थ खराब कर सकती हैं, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है, आप क्रिमिनल ऑफेंसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर ये आपका सोचने का, फील करने का जो है वो मोड चेंज कर देते हैं। आप ओरिजिनल नहीं रहते, आप वो नहीं रहते, आपको धीरे धीरे आपका इंटेलिजेंट ब्रेन श्रिंक हो रहा है, और आपका जो दूसरा माइंड है, मंकी माइंड, वो ग्रो कर रहा है, उसको हर वक्त प्लेजर चाहिए, वो बार बार आपको पुश करेगा उन नेगेटिव एक्टिविटीज में, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर डिसरप्ट हो जाएंगे, एंड देन यू विल लूज योर ब्यूटीफुल गुड पर्सनैलिटी। और धीरे धीरे अगर आपने टीन एज में
अभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, एडोलेसेंट तक पहुंचते हुए एडल्टहुड तक एंटर करते करते आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। I am treating so many youngsters within the age of 14 to 21 who are suffering with severe psychotic and personality disorder just because of over usage of phone, over usage of screen, over playing of games, or with any other unhealthy habits. Trust me, I'm not here to lie before you. I have so many testimonies, I have so many cases with me. So don't let your mind play with these things. Don't push yourself into depression, bipolar, or trauma and future stress. Don't trap yourself in unhealthy habits, because still, if you feel like trapped, there is a very, very positive and good chance कि हम उसे overcome कर सकते हैं. There is a neuroplasticity, a wonderful psychological training program which can rewire the brain even after addiction. So we are helping so many people to overcome their unhealthy habits by training their brain, because we coach your soul. And we have this beautiful program, Habit Restructuring. 5 days का program है, Monday to Friday, 60 minutes, और sorry 1 hour daily. उतने में ही हम सारी वो टेक्निक्स बताते हैं टू हैबिट स्ट्रक्चरिंग. लेकिन आज भी मैं आपको क्विकली थोड़ी सी टिप्स जरूर दूंगी कि आपने इसे कैसे बदलना है. ओके, हैबिट्स जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है. जिस तरह के काम आप बार बार करोगे उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होगी, ये आपको पता है. सो आज ही आपको कंसिस्टेंटली अपने माइंडसेट में वो बिहेवियर्स इनकलकेट करने हैं जो कल को जाके आपको अच्छी पर्सनैलिटी दें. और उसके लिए मैं देने वाली हूं आपको 4 पावरफुल स्टेप्स टू ब्रेक डोपामाइन एडिक्शन. आर यू रेडी? हेलो. सो आई वुड लाइक टू आस्क, कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है? होप आप बोर नहीं हो रहे हो. यस, वेरी गुड. यस, few people are consistently replying, others are just sleeping maybe. So how to break this dopamine addiction? Either it is about mindless scrolling, jumping from Facebook to Insta to this, or from that to other platform, or getting addicted to some series, getting addicted to some games. उसको कैसे करना है? So सबसे पहला स्टेप है वीकली डे या 1 hour एवरी डे. आप एक दिन हफ्ते का पूरा दिन स्क्रीन को डिटॉक्स कर सकते हो, अपने आप को व्रत रख सकते हो, फास्ट रख सकते हो कि पूरा दिन स्क्रीन यूज नहीं करनी, फोन यूज नहीं करना. तो इसे हम डिटॉक्सिंग, डिजिटल डिटॉक्स या डोपामिन क्लिनजिंग बोलते हैं. इफ यू आर एफिशिएंट एनफ टू यूज 1 day in a week, फाइन. अदरवाइज आप 1 hour एवरी डे या 2 hours एवरी डे भी रख सकते हैं कि जिसमें आप कंप्लीटली स्क्रीन नहीं देखोगे जब तक आप जाग रहे हो. ओके, तो जो ये डोपामिन क्लिनजिंग का आपका स्लॉट होगा वो आप अपनी तरीके से, अपने शेड्यूल, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कर सकते हो. और उसमें फोन स्विच ऑफ करना है, बिल्कुल भी उसे नहीं देखना है. वो उतनी देर में आपको फोन की तरफ ध्यान नहीं देना है. आप अगर वर्किंग हैं, आपका फोन पे ही सारा काम होता है, तब आपने उसको फ्लाइट मोड पे या नोटिफिकेशन ऑफ करना है, ताकि आप बार बार उसकी नोटिफिकेशन की तरफ भी ध्यान न दें. ओके, जब आप कोई और एक्टिविटी से इसे रिप्लेस करोगे, इधर रीडिंग ए बुक, टॉकिंग विद फ्रेंड्स और फैमिली, और नरिशिंग योर हॉबी और स्किल, किसी चीज में जो आपको करना अच्छा लगता था और आपने छोड़ दिया, आप दोबारा से उस एक्टिविटी पे वापस आइए. थोड़े दिनों में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, सच में. शुरू में डेफिनेटली पहले दिन जब आप शुरू करोगे, दूसरे दिन शुरू करोगे, आपको एंजाइटी होगी. और यहाँ मैं पेरेंट्स की अटेंशन लेना चाहती हूँ कि जब बच्चों से आप ये एक्सरसाइज कराएंगे तो प्लीज इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा. थोड़ी सी रेजिस्टेंस, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, जिद आएगी. लेकिन आपका सपोर्ट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका प्यार और आपके ये लॉजिक्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं,
धीरे धीरे आप उन्हें रिमाइंड कराएंगे, धीरे धीरे आप उन्हें बार बार क्यूज की बात बताएंगे, माइंड मंकी माइंड और मंक माइंड की बात बताएंगे, तो धीरे धीरे फिर से उनका माइंड सेटल डाउन होगा इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, इन नेक्स्ट फ्यू डेज। थोड़ी देर उस एंजाइटी को बर्दाश्त करना है, ओके। और आप देखोगे फाइनली यू विल हिट दैट गोल कि आप काम फील कर रहे हो, रिलैक्स्ड हो, रेस्ट ऑफ द डे इज वेरी प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। आपको खुद से प्राइड होगा, वाओ आई हैव डन इट, वाओ। स्टेप नंबर 2, ये खासकर उनके लिए जो बोलते हैं कि मैं तो रील्स देखनी नहीं होती, मैं तो व्हाट्सएप का मैसेज या मैं तो ऑफिस की मेल खोली थी या मैंने स्कूल का होमवर्क किया, उसमें ही कोई ना कोई पॉपअप आता गया। यस, ये हो रहा है, पर आपको ये समझना है कि ये कंपनीज का कमर्शियल बेनिफिट है। ये सोशल मीडिया कंपनीज सो कॉल्ड पैसा कमाने के लिए वो आपके लिए ये छोड़ रही हैं, चोगा डाल रही हैं, जिसको कहते हैं ना ट्रैप में फंसे कबूतर तो दाना डालते हैं, तो ये उनका काम है। आपको उनका बेनिफिट करने के लिए अपना लॉस नहीं करना है। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, जस्ट क्विक डोपामिन के सिवाय, वो डोपामिन जो लास्टली आपको गड़बड़ करने वाला है ना। सो आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं लेना। ये जो ड्रॉप ड्रॉप करके आपके अंदर वो डोपामिन डाल रहे हैं और इंस्टेंट प्लेजर दे रहे हैं, वो आपको आज गेम समझ आ गया है। दे आर प्लेइंग विद योर माइंड, दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस, दे आर इम्बैलेंसिंग योर ओरिजिनल डोपामिन क्रिएटेड बाय योर ब्रेन। अब आपको बार बार ये लॉजिक देना है अपने आप को, बीइंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ओके। तो आपको वो सारी एप्स शट ऑफ कर देनी है, वो सारी नोटिफिकेशन बंद कर देनी है, जो शॉपिंग एप्स हैं, जितनी भी गेम एप्स हैं, उनको आप बंद करोगे। और कभी भी आपको अगर अपनी एप्स कभी यूज करनी है, फोन के थ्रू नहीं करिए, आप ब्राउजर यूज करिए, लैपटॉप पे या पीसी पे। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ये चेंज आते ही फोन से आप बड़ी डिवाइस पे शिफ्ट हो जाते हैं, आप देखिएगा कितना बड़ा चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। लैपटॉप से भी फालतू की जितनी एप्स खुली रहती हैं उनको लॉग आउट कर दीजिए। वो सिर्फ आपके सिस्टम को हैंग नहीं कर रही, आपके ब्रेन को भी हैंग कर रही हैं, ठीक है। और बाकी जितनी भी गेमिंग की एप्स हो गई, शॉपिंग की एप्स हो गई, स्नैपचैट वाली ऐप हो गई, वट एवर इट इज, जो भी आपका टाइम कंज्यूम कर रही है और आपको बार बार अपनी तरफ खींचती है, उनमें ऑटो पासवर्ड मत लगाइए। अगर आप सच में अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं तो ये एक्टिविटी आप आज ही करें। स्पेशली एडल्ट्स को बोल रही हूँ, आप एक डिफिकल्ट पासवर्ड लगाएंगे जो आपको कहीं नोटबुक से देख के खोलना पड़ेगा उन एप्स के लिए। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आपका एफर्ट कम हो जाएगा। ये इंस्टेंट पासवर्ड, इजी पासवर्ड फटाफट खोल लेते हैं हम लोग, हमसे कंट्रोल नहीं होता। सो दिस इज द अनदर वेरी गुड टिप, ओके। सोशल मीडिया की जितनी भी कंपनीज हैं, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे अगर होमवर्क की वेबसाइट खोल रहे हो, आप कोई अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हो, आप अपनी कोई असाइनमेंट के लिए कुछ देखना चाह रहे हो, आपको पता है कि उसके साथ साथ कितनी सारी सजेशंस आती हैं, और धीरे से हम इधर से कब उधर पहुंच जाते हैं। मेरे साथ भी होता है ये, जब भी कंटेंट बनाने के लिए मुझे कुछ देखना होता है, कुछ आइडिया लेना होता है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर मैं ऐसे ही बिंज करके उधर पहुंचती रहती तो आज ये प्रोग्राम डिलीवर नहीं हो रहा होता। मेरे इतने सारे बंडल्स ऑफ रिसोर्सेज जो लोगों को मिलते हैं वो नहीं मिल पाते, क्योंकि फिर मैं कंटेंट क्रिएशन की बजाय यूट्यूब स्क्रॉलिंग में ही रहती। एग्री करते हैं आप लोग? तो मेरे फेलो कोचेज, मेरे जो ट्राइब मेंबर्स हैं, जिनको लगता है कि हमसे वो काम नहीं हो रहा जो हम कर रहे हैं, फाइंड आउट कहीं ये वाली बिंज हैबिट आपको तो नहीं है। हाइड सजेशंस बाय सोशल मीडिया, बहुत सारे फीड ब्लॉकर्स आते हैं, यूट्यूब के अलग आते हैं, लिंक्डइन के अलग आते हैं। बहुत बार मुझे लोगों ने आके ये प्रॉब्लम बताई है कि हम लोग चाहते हुए भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई फीड आती रहती है, और वो हमें कब बहा के ले जाती है पता ही नहीं चलता। सो आई यूज डिस्ट्रैक्शन फ्री ब्लॉकर इन यूट्यूब, आई यूज क्रोम एक्सटेंशन टू ब्लॉक फीड ऑन लिंक्डइन। तो आपको जो चाहिए आप वो चीजें ओपन, और जो नहीं चाहिए वो शट करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनीज ने आके नहीं बोलना है कि ये आपके लिए हार्मफुल है। मोमोज वाले नहीं बोलते मोमोज हार्मफुल हैं,
पर हमें पता है मोमोज हार्मफुल है। थर्ड स्टेप, फोकस्ड रह के थोड़ी देर अपने काम पे ही ध्यान देना है, ना इधर ना इधर। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। ये जितना भी माइंडफुल है इंफॉर्मेशन ओवरलोड से, आइदर फ्रॉम सोशल मीडिया और फ्रॉम फ्रेंड्स और फ्रॉम फैमिली, निकाल दीजिए और फिर फोकस्ड होके बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस पे थोड़ी देर अपनी टास्क पे ध्यान दीजिए। और इसके लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है पोमोडोरो। कोविड के बाद से और मल्टीपल स्क्रीन यूज करने से हर एज के लोगों में अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो गया है, हमारी मेमोरी लैप्स हो रही है, हमारा फोकस कंसंट्रेशन बिगड़ गया है। तो किसी भी काम को करने के लिए एक स्लॉट फिक्स करिए कि 25 मिनट्स आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस टास्क। मुझे पता है मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती, कोई बात नहीं, आप 25 मिनट्स बैठिए और उसमें पूरी एनर्जी पूरा एफर्ट लगा लीजिए वो काम करने के लिए, वो लेसन लर्न करने के लिए, वो मैथ्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, वो अपनी ड्राइंग कंप्लीट करने के लिए, वो अपना कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए। फिर 5 मिनट्स की ब्रेक लीजिए। 5 मिनट्स की ब्रेक में फोन नहीं उठाना, 5 मिनट्स की ब्रेक में कॉल नहीं करनी, ना कॉल लेनी है। वो 5 मिनट्स की ब्रेक में आपको बस आंखें बंद करके बैठना है, पानी पीना है, या फिर आंखों पे पानी की छींटे मारनी है, एक चक्कर लगा के 5 मिनट्स में वापस आके बैठना है और फिर अनदर 25 मिनट्स का एक सिटिंग लगानी है। सो इस तरह से 25-5 25-5 25-5 के 5 सेट्स लगाने हैं आपने एक दिन में। ट्रस्ट मी, मेरे कहने पे ये एक काम कर लोगे ना, आपके 50% गोल्स विद इन ए वीक और 10 डेज पूरे होने शुरू हो जाएंगे। मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको, करके अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं यहीं बैठी हूँ, आप मुझे बताइएगा। Set a timer to 25 minutes. Work on one goal. No switching attention. No using phone. Take a break of 5 minutes. Then repeat the process for 5 times. So this technique is going to help you to calm your mind, to feel better. आपका खुद का ब्रेन ने इतना एफर्ट लगाया, फोकस और अटेंशन करी और उसने डोपामिन प्रोड्यूस किया भर भर के, और वो इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने वो डोपामिन किसी एडिक्शन से नहीं लिया, मेरा अपना प्रोडक्शन है, मेरी खुद की मेहनत से कमाई हुई ये दौलत है। एंड लास्ट स्टेप 4, कीप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। जब भी ब्रेक्स हैं, जब भी आप फोकस्ड काम भी नहीं कर रहे हो, जरूरी नहीं है तब भी आपने गेम पे या सोशल मीडिया पे या फिर माइंडलेस स्क्रॉलिंग पे रहना है। नो, आप वो एक्टिविटीज करिए, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको साइकिलिंग अच्छी लगती है, आपको लिखना अच्छा लगता है, आपको वीडियो बना के रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है, कोई आपको लोगों को अच्छी बातें समझाना अच्छा लगता है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट इन्वेस्ट यूर फ्यू मिनट्स इन ए स्किल बट विच गिव्स यू प्लेजर। तो वो रीडिंग ए बुक हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, गोइंग आउट इन द नेचर हो सकता है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेस हो सकता है, मीटिंग योर फ्रेंड्स, मीटिंग योर फैमिली, फैमिली गेट टुगेदर, इंडोर गेम्स और लिसनिंग टू एनी फेवरेट म्यूजिक। तो अपने टेम्परामेंट, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चॉइस के हिसाब से बेटर, पॉजिटिव, हेल्दी, स्किलफुल ऑल्टरनेटिव जरूर रखिए प्लीज। और जब आप अपने ब्रेन को आज कमिटमेंट करके ये गोल बना लेंगे कि मैंने अपने ब्रेन को हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के लिए तैयार करके उसकी डोपामिन एफिशिएंसी, उसकी डोपामिन प्रोडक्शन की पावर बढ़ानी है, ना कि ऑल्टरनेटिव मीडियम से, सो डेफिनेटली यू आर शिफ्टिंग एंड रीवायरिंग योर ब्रेन। ओके, सो ये रीवायरिंग जो है ब्रेन की, ये धीरे धीरे आपको डी एडिक्शन की तरफ ले जाएगी, रिकवरी की तरफ ले जाएगी। जब जब रिलैप्स आए, आज आपने पॉइंट्स बनाए होंगे, नहीं तो ये मेरी आवाज अब आपके कानों में गूंजती रहेगी, सिर्फ उनके जो सच में मुझे प्यार करते हैं और जो सच में मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो सच में ये मानते हैं कि आज मैम ने अपना बहुत ही मेहनत भरा टाइम इन्वेस्ट किया है, और ये टाइम सिर्फ मैंने आज यहाँ एग्जीक्यूट करने में नहीं किया, उससे पहले कंटेंट क्रिएट करना, प्रॉपर तरीके से, इजी तरीके से चीजें कैसे डेवलप की जाए। तो अगर आप उसकी वैल्यू करोगे तो आप
रिलैप्स में जाने से पहले एक बार मेरे बारे में सोचना। जब भी आपका वो मंकी माइंड आपको पिन पिन करे, पोक करे, उसको कहना शट अप, सीन मैम देख रहे हैं, 2 चांटे लगाएंगे तेरे को, ठीक है? क्योंकि ये रीवायरिंग डिपेंड करेगी कि आपकी आदतें कितनी पक गई हैं। जितना ज्यादा हम आगे चले जाते हैं गलत बस में बैठ के, कितने किलोमीटर चले गए, कितनी सिटीज दूर चले गए, उतना ही वापस आने हमें टाइम लगता है। सो जितनी एडिक्शन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है, कितना आपकी वो टाइप ऑफ एडिक्शन है, आपके ब्रेन में आपने कितना डैमेज कर लिया उसको, उतना ही रिकवरी में टाइम लगेगा। और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आप कितने हटाते हो, ईमानदारी से कितने एफर्ट्स डालते हो, उस पे डिपेंड करेगा आपकी ये ब्रेन रीवायरिंग कितनी जल्दी होगी। ओके, सो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मत कहना कि बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं। ओके, क्योंकि अगर इस वक्त किसी भी तरह के कारण हैं, कई बार ये अपनी बनाई हुई एडिक्शन नहीं होती। सो मैनी पीपल जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, सेशंस के लिए, उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ होता है। कोई उनके लाइक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पेरेंटल कंफ्लिक्ट है, उनको बुली हो रहा है, उनके साथ किसी तरह का और अब्यूज हुआ है, कोई निग्लेक्ट है, रिजेक्शन है, डिसफंक्शनैलिटी है, तो धीरे धीरे फिर उनके अंदर पीपल एडिक्शन या फिर फीलिंग एडिक्शन आने लगता है। फीलिंग एडिक्शन मतलब नेगेटिव फीलिंग्स में पीछे वो छुपे रहते हैं, हर वक्त कंप्लेन करना, ब्लेम करना, विक्टिम माइंडसेट से खेलना, रेज, फियर, जेलसी, सैडनेस, और या फिर वो टॉक्सिक लोगों में फंसते हैं, गलत रिलेशनशिप, अनहेल्दी इमेच्योर सेक्सुअल एक्टिविटीज, और अनहेल्दी ग्रुप्स ज्वाइन करना, है ना, वायलेंस में चले जाना या फिर सब्सटेंस अब्यूज में चले जाना। और फिर वही चीजें धीरे धीरे उनके बिहेवियर्स और पर्सनैलिटी में दिखाई देने लग जाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी रूट्स हैं, जैसे जैसे आप अब डेवलप हो रहे हो, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, प्लीज आपका अभी अंडर डेवलपमेंट पीरियड है। अपनी पर्सनैलिटी वाले फुल ग्रोन ट्री को नेगेटिव मत बनाइए। और पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि अकेला ब्रांचेस को कट करने से, उनको ताने देने से, उनको ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हमें रूट्स पे काम करना है। कोशिश करिए, बच्चे का कोई पीयर प्रेशर है, बच्चे का कोई रूट कॉज है, आपके घर में कोई टॉक्सिसिटी है, एनवायरमेंटल इशू है, निग्लेक्ट है, आप टाइम कम दे रहे हैं, अटेंशन कम दे रहे हैं, बच्चे को अकेले बहुत रहना पड़ता है, वट एवर द रीजन इज, आप उस रीजन को हटाइए, फैक्टर्स को हटाइए, रूट्स पे काम करिए। और अगर कहीं भी हमारी हेल्प की जरूरत है, वी आर ऑलवेज हियर। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन थ्रू आउट ग्लोब सेशंस ले रहे हैं, इन पर्सन प्लस जूम के थ्रू, हर तरह के डिसऑर्डर, हर तरह की हेल्पलेसनेस, हर तरह की एडिक्शन पे हम काम कर रहे हैं। ओके, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल सिटिंग इन दिस रूम, प्लीज ऑप्ट फॉर राइट चॉइसेस। ये पुरानी कितनी भी गलतियों की चेन्स हैं तोड़ दीजिए और राइट साइड पे राइट डिसीजंस लीजिए। अच्छी लाइफ, अच्छी हैबिट्स, अच्छी चॉइसेस आपको वेट कर रही हैं। दे आर कॉलिंग यू, दे आर इनवाइटिंग यू टू ज्वाइन इट। एंड इफ यू विल प्रेफर द बैलेंसिंग अप्रोच, आप बीच बीच में लेजर प्लेजर भी लेंगे, पर आप बीच बीच में एफर्ट भी करेंगे, वो गोल्स की तरफ ध्यान देंगे, ट्रैक्शंस पे ज्यादा फोर्स पुश करेंगे, then your life is going to be a celebration rather than trash. Okay, so here is a beautiful video and a beautiful powerful song for all my participants today sitting in this room. When I'm feeling low, I don't know where to go. I don't know who to turn to in the night. Then I close my eyes and there to my surprise, I see a new beginning in my sight. I see the light.
I see my dreams just coming closer as I regain my composure. As my mind just opens up, I see the light. I see the light. I see the vision of my future as I waken from my stupor. Shining brightly right before me is the light. I see the light. Hey. It's a brand new day. I see a whole new way. New possibilities are in my mind. Something's gotta change when I just rearrange priorities and choices in my life. I can see clearly the night has gone. I feel rejuvenated and reborn. Seems impossible until it's done. Let's not stop now, for we have just begun. I see the light. I see my purpose right before me. You're calling out to me. As I focus on the path, I see the light. I see the light. I know the skill that lies within me, and a will that's formidably breaking out into the night. I see the light. I see the vision. I feel the passion. I feel the pain and the glory. I see the purpose. I seize the moment as I'm rewriting history. I see the light. I'm no longer your journey. I'm on my way. No comparisons, no matter what they say. I have a lifetime of learning ahead of me. Yes, I learn to be the best version of me. I see the vision. I feel the passion. I feel the pain and the glory. I see my purpose. I seize my moment as I'm rewriting history. Oh yeah, I see the light. So, are you ready to beat the addiction? And are you ready to hit this dopamine addiction? If you are ready, all my love, all my blessings, all my support is with you. Because nothing is impossible. ये आपने आज डिसाइड कर लेना है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया आई वॉन्ट टू अचीव इट, तो आप सब तरह की डिफिकल्टीज, सब तरह की जो एक चैलेंजेस हैं उनको आप तोड़ पाएंगे, फेस कर पाएंगे और डिस्ट्रॉय कर पाएंगे. Thank you so much for all your love, for all your time, for all your attention. And if now there is any question, most welcome to ask. We will take quick 10 minutes time if there are any questions. And as Swati has said, अगर आप रिव्यू लिखेंगे, फीडबैक भेजेंगे, अपना फीडबैक हमें भेजेंगे और गूगल का रिव्यू पोस्ट करेंगे, तो फिर आपको एक वर्कबुक मिलेगी टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ यू. कैसे आप अपनी एडिक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रेटेजीज इन दैट वर्कबुक जो टीनेजर्स के लिए मैंने स्पेशली डिजाइन की है. दैट वर्कबुक विल बी सेंड टू पीपल जो अपने रिव्यूज और फीडबैक का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप से भेजेंगे. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. All the links have been shared in chat. Yes, please. Any question, any feedback? Anybody wants to say something? Yes, please. Raise your hands if anybody wants to say a few words or want to ask anything. No?
ओके, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप थक गए। मैं तो थक, आई एम स्टिल रेडी टू हैव क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। ओके, यस मानसी। So good to have you, dear, in today's session. Yes, ma'am. Thank you so much. Actually, my mother only told me to join today, and it was such a wonderful session कि मेरी मम्मी तो बताती रही, मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि इसका मकसद क्या है. And you told, so I will definitely try to improve myself towards the better tomorrow. Thank you, darling. Thank you so much. Thank you. Yes, Antar. Hello, ma'am. Hello. Hi. Good Hello, evening. ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, I wanted to know that can a good habit also be an addiction? Yes, beautiful question, as you are beautiful. So, Thank you, ma'am. एडिक्शन बैड हैबिट नहीं होती, सिर्फ गुड भी हो सकती है. एज सो मेनी पीपल दे आर इनटू पीपल प्लीजिंग, और दे हैव सेवियर एडिक्शन. मुझे ही सबके लिए सब कुछ करना है. नाउ देयर इंटेंशन इज नॉट बैड, है ना. दे वांट टू सर्व, दे वांट टू टेक केयर, दे वांट टू हेल्प एवरीबडी. दे आर सो काइंड, दे आर सो सेंसिटिव, दे आर सो केयरिंग. But so many times it is always backfiring our peace of mind and our efforts and our health if people are not reciprocating in the right way. Okay, so then we ask people to maintain a healthy balance. Second example I can give you about exercising. These days people are addicted to gymming, you know. They even don't bother how much healthy their body and muscles are, what kind of exercise they can use, what kind of instrument they can use. They are just pushing themselves to show and to make those abs very early, है ना, muscle building के लिए or some other purpose. So they are taking too much toll on their physical and emotional health without looking into the negative consequences. Though gymming and exercising is a good thing. Hmm? Okay. Thank Shopping you. is not bad at all. So, But you know, na, मैम when it मैम becomes bad. शी वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि इसको बुक रीडिंग का बहुत क्रेज है. तो समटाइम्स हर होमवर्क इज पेंडिंग एंड आई टेल हर कि बेटा बुक बाद में पढ़ लेना, पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो. तो शी सेड आई विल आस्क मैम एंड देन आई विल डू इट. Yes, इसके लिए आपको मैंने शायद बताया आइजनहोवर अभी कि नहीं, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट. हाँ जी मैम, हाँ जी. वो वाला आप मैट्रिक्स अंतर के साथ डिस्कस करिए. सो शी विल राइट डाउन द श्योर. एक्टिविटीज कि आज के दिन में या इस वीक में मेरे लिए क्या क्या अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है. सो इफ वी हैव सम टेस्ट falling in this week or my homework is pending, then that is important and urgent. My book reading is important but that is not urgent, है ना. अर्जेंट, उसको राइट. थोड़ा पेंडिंग भी किया जा सकता है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू पिक चॉइसेस बच्चे. तो okay, चॉइसेस का ma'am. मैट्रिक्स भी हम ऐसे ही बना सकते हैं. ठीक श्योर. है. थैंक यू या, सो मच. Thank you. थैंक यू. यस मेघा. हेलो मैम. तो यही है, सानवी का भी आपने देखा होगा चैट बॉक्स में, उसने जैसे अंतरा ने बोला है कि फीलिंग का ही. हाय सानवी, गुड टू सी यू बच्चे. शी सेड की हम्म. गुड टू सी यू. तो दैट इज व्हाट शी सेड कि आई नाउ रियलाइज कि अच्छा इसको हम एडिक्शन बोलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एडिक्ट हो गई हूँ बुक रीडिंग को. नाउ आई एम कीपिंग उसको. अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस करनी होती है, इंटरमीडिएट एग्जाम्स है, and, दूसरे एक्टिविटीज वो नहीं करती है एंड बुक रीड करने में बैठ जाती है. तो शी इज जस्ट नाउ टोल्ड मी कि मम्मा मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद ये एडिक्शन है, एंड ये मुझे कोई काम बात करना नहीं. नाउ यू गॉट द आंसर बच्चे. पड़ेगा. एज वी वर टॉकिंग टू अंतर, यू गॉट द आंसर, है ना. यस, लव यू. यस तरुण. So I hope it's not Tarun, maybe Puneet is there. Yes, Sween Didi, Puneet this side. Hi. Good evening. Hello. Yeah, Good Didi, evening. the session was very, very powerful. Amazing content. I mean, Thank जितने you. बच्चों ने अटेंड किया है, आई एम श्योर फर्स्ट हैंड आपसे वो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इट वुड हैव बिन ऑफ मच यूज फॉर देम. क्योंकि ये बातें हम बोलते हैं, हम अपने तरीके से बोलते हैं.
इतना फायदा नहीं होता, पर डायरेक्टली आपसे सुनिए ना, तो आई एम श्योर ऑल दीज चिल्ड्रन दे वुड बी पॉन्डरिंग ओवर ऑल ऑफ दिस, कि ये शायद मम्मा जो बोलते थे ठीक है, पर लॉजिक आज समझ आया है जो आपने, Yeah. जिस तरह से आपने समझाया। सो वेरी वेरी अमेजिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया ये सेशन अटेंड करके। और बीच में जो आपका इमोशन था ना, सबसे ज्यादा वो टच कर रहा था हमें, कि आप एक्चुअली जो एक कंसर्न हम सब फील करते हैं अपनी यंगर जनरेशन के लिए, वो बहुत एविडेंट और क्लियर था आपकी आवाज में, आपके कंटेंट में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी इंटेलिजेंटली क्राफ्टेड एंड क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन एंड सेशन। थैंक यू दीदी। Thank you so much. Thank you. Yes, anybody else? I can see young people. Arhan, would you like to ask anything, bacha? Good evening. Oh, गायब हो गए. Okay. Alia, would you like to say something or ask something, bacha? चलिए. Thank you so much, everyone. Thank you. If there is no other question or no feedback, so I will like to take your leave. All the best. God bless you. And would be waiting for your reviews and feedbacks so that I may find as much resources I can as I can. Thank you Thank so you. much, ma'am. Thank you, Thank you so ma'am. Thank you so much. Thank you, Ji. Thank you. All the best. Bye bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Bye.